Hi guys, welcome to Course Edge Online Classes. My name is Nitesh and today we will going to start a discussion on previous year exams of JNU. As you know, JNU exam is going to conduct in a few days. Okay, so we are going to present you a previous year exams, previous year question papers with a solution and answer key. Okay, so my portion is for the aptitude. I'll give you all the solutions and all the answer keys regarding aptitude, your quant and reasoning questions. Okay, so let's start with the JNU 2017 exam. The first question is, in a certain language, machine is coded as LBBIHOD. Which one of the following word can be coded as SLTMFND? So this is the code that is given. I have to find out the word for which this code lies. Okay. Now, first of all, what I have to do, I have to find out the specific coding. I have to find out the coding in which way this coding is done and which way this coding is done. So, as you know, M is 13th position, A is in first position, C is in third, H in 8, 9, and N is in 40 and 5. Okay. Now, this is coded as L, B, B, I, H, O, D. So this L is in 12th position and B is in second and then again B second, I ninth, H 8th, O 15th and D 4th. So see 13 to 12 minus 1 position, 1 to 2 plus 1, 3 to 2 minus 1, 8 to 9 minus plus 1, 9 to 8 again minus 1, 14 to 15 again plus 1, 5 to 4 again minus 1. So this is the coding that is going on. We are changing the letter with their previous and in alternate with their next letter. Okay, previous letter with the previous letter in odd position and with their uh, alternate next letter with their within even position. Even position में जितने भी है उनमें मैं next letter लेके जा रहा हूँ और odd position में जितने भी है minus लेके जा रहा हूँ. So he said that this is the code. This is the code for any of the given option. So tell me which word has code like this in the same way. ठीक है? तो जैसे ये चल रहा है वैसे ही हमने यहाँ पे चलाया. अगर यहाँ पे हम STMFNB. Okay. So this S is for, as you know, S is for 19, T is for 20, M is for 13, F is for 6, N is for 14, B is for 2. यहाँ पे -1 होना था, 19 आया था, मतलब यहाँ पे 20 पोजीशन आता विच इज टी. यहाँ पे +1 होना था, राइट. -1 के बाद यहाँ +1 होना था, 19 + 1 20 होता, 90 पोजीशन आता है यहाँ पे एस. यहाँ पे अगेन -1 होना था, यहाँ पे 14th होता विच इज 10. और यहाँ पे +1 होता, +1 होना है तो यहाँ पे अगर 6 है तो यहाँ पे 5 होता. 5 जो है वो मेरा ई आएगा. सिमिलरली यहाँ पे -1 का केस होगा, 15 to 14 जा रहा है तो 15 मेरा क्या नंबर, 15 का क्या है मेरा छोटी का ओ. ओके. नाउ बी में यहाँ पे +1 करके 2 आया है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन वाला था वो क्या था, ए. तो ये जो है इसका, सॉरी इज देयर समथिंग दैट आई लेफ्ट, या एल. सॉरी ये मेरा आपका कुछ गलत हो गया. एल जो है बीच में मैंने छोड़ दिया, इसकी वजह से हमारा थोड़ा गलत आंसर आ रहा है. सी एस एल टी एम एफ एन बी. This S is for 19, L is for 12, T is for 20, M is for 13, F is for 6, N is for 14, B is for. Okay. अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे देखो तो S जो है मेरा, S is for 19. देखो यहाँ पे -1 होना था, +1 -1 +1 -1 +1 -1. ओके. तो ये -1 करके 19 गया, दैट मींस यहाँ पे 20 पोजीशन वाला था. +1 के 12 गया, यहाँ पे 11 पोजीशन वाला था. -1 करके 20 गया, दैट मींस यहाँ पे 21st पोजीशन वाला था. +1 के 13 गया, यहाँ पे 12 पोजीशन वाला था. और यहाँ -1 करके 6 गया तो यहाँ पे 7. सिमिलरली अगर ये +1 करके 14 आया है तो यहाँ पे 13 पोजीशन थी. और अगर ये -1 करके 2 आया है
तो यहाँ पे मेरी थर्ड पोजीशन। ओके, नाउ 20th पोजीशन में क्या है, T20 11 का आपको पता है क्या आएगा, के। 21st का आपका क्या आएगा, यू। ओके, 12th का आपका क्या आएगा, एल। 7 का आपका जी, एंड 13th का आपका एम, और यहाँ पे आपका सी। तो ये जो आपका है इसका कोड है जो मेरे को गिवन है, इसका कोड है जो मेरे को गिवन है, क्या है, TKULGMC। TKULGMC, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सेम वे जैसे सोल्यूशन भी आपके साथ के साथ आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, आपकी हमारी ऐप पे आप जाइए, वहां पे सोल्यूशन भी आपको मिलेंगे और वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया TKULGMC। ठीक है, चलिए आगे देखिए। When Gauri was born, her mother was 25-year older than her sister and her father was 35-year older than her brother. If Gauri's brother is 6 year older than her mother, there is some mistake. यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेंज करवाया भी था अपने टाइपिंग से, बट स्टिल अगेन वही पे रह गया। यस, देन गौरी, यहाँ पे था गौरी, एंड उसके बाद ये जो थी नेक्स्ट लाइन थी, हर मदर इज 3 year यंगर देन हर फादर। ठीक है, ये था मेरे पास। तो अगर आप देखो, मैं इनके जो मदर फादर, मदर को एम, सिस्टर को एस, फादर को एफ, ब्रदर को बी, एज अ, ये जो मैंने ये जो मैंने रेंटीज दी है, ये एज ए मैं उनकी एज ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये उनकी एज, फादर की एज एफ है, मदर की एम है, सिस्टर की एस है और ब्रदर की बी है। ठीक है, अब जब गौरी बोर्न की, मैंने ये सपोज कर लिया उस टाइम पे इनकी एज इतनी इतनी थी। गौरी जब बोर्न की उस टाइम पे इनकी एज इतनी इतनी थी। ठीक है, नाउ हर मदर इज 25 year old, 25 year older than her sister, उसके सिस्टर से 25 year older है, तो मैंने ये यहाँ पे इक्वेशन बना दी। सेकंड क्या है, हर फादर वाज 32 year older than her brother, उसके ब्रदर से 32 year old है, ये एक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गोरी ब्रदर इज 6 year older than गोरी, गोरी ब्रदर इज 6 year older than गोरी, दैट मीन्स जब गोरी जन्म ली थी, गोरी गोरी का बॉर्न हुआ था, तब उसके ब्रदर की एज कितनी होगी, 6। बिकॉज माइनस जी करूंगा, जी तो उस टाइम पे 0 है जब वो बॉर्न हो रही है, राइट। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, हर मदर इज 6 year यंगर देन हर फादर, हर मदर इज 6 year यंगर देन हर फादर, मतलब फादर और मदर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 साल का, फादर और मदर के बीच का डिफरेंस है जो 3 साल का है। मेरे को निकालना क्या है, हाउ ओल्ड वॉज गोरी सिस्टर व्हेन गोरी वॉज बोर्न, तो ये एस की वैल्यू निकालनी। तो बी पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ आपका, यहाँ से क्या निकल जाएगा, फादर। बी मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो मेरी फादर की एज क्या निकल जाएगी, 32 + 6 विच इज 38। 38 फादर की आ गई, वो फादर की एज मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो आई गेट मदर्स एज, मदर एज क्या आ जाएगी मेरी, 35। अब मदर एज 35 आ गई, वो मदर एज मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरा क्या आंसर आएगा, सिस्टर का एज आ जाएगा। जो सिस्टर की एज आएगी वो मेरी मदर एज -25 है, विच इज 10। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 10। तो इस तरह से मैं सॉल्व करूंगा। देखो, गौरी के बर्थ के टाइम पे मदर एज को मैंने एम ले लिया, फादर एज को एफ, ब्रदर एज को बी और सिस्टर एज को एस, और इस वजह से मैंने उसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Now, three word historian, scholar, and researcher are related in the same way. Which one of the following option exhibit the same relationship? देखो, जो हिस्टोरियन है वो स्कॉलर भी है एक, ठीक है, वो पढ़ के आया है, स्कॉलर है, और रिसर्चर भी है। ठीक है, उसने रिसर्चर भी किया है, उसने वो स्कॉलर भी है, उसने रिसर्च भी की होगी, तभी जाके वो हिस्टोरियन बना है, राइट। सिमिलरली, सिमिलरली अगर मैं नॉवल की बात करूं, नॉवल एक बुक भी है और एक एपिक भी है। ऑप्शन डी में जो नॉवल दिया है वो एक बुक भी है और एक एपिक भी है। अब मैं सी की बात करूं, देखो, मॉर्निंग इज अ डे, चलो कह सकते हैं डे का पार्ट, बट मॉर्निंग इज अ नाइट वो नहीं कह सकते कि वो वहां से नहीं आ रहा, राइट। वो सेम चीज नहीं है। अब देखो, बी पार्ट देखो, स्टोरी, हिस्ट्री, बुक। स्टोरी ये कुछ भी स्टोरी हो सकती है, उसमें कुछ हिस्ट्री का पार्ट जरूरी नहीं है, हो या ना हो, वो कुछ भी बना सकता है। और बुक जो है वो एक अलग चीज है, उसमें सब कुछ होता है, स्टोरी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी, सब कुछ होगा। नाउ ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, प्रोफेसर, लेक्चरर और टीचर, ये एक अलग अलग हमारे वो क्या कह सकते हैं उसके प्रोफेशन है। ठीक है, प्रोफेसर आपको जनरली वहां पे मिलेंगे आपके कॉलेजेस में, लेक्चरर प्रोफेसर मिलेंगे, और टीचर अगर बात करें तो टीचर कहीं के भी हो सकते हैं, चाहे आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो,
चाहे आपके स्कूल्स के हो चाहे आपके उसके हो, तो इस तरह से वो भी थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रिया वॉक 10 मीटर इन द फ्रंट। ओके, फ्रंट को मैं ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, 10 मीटर फ्रंट, और उसके बाद वो राइट टर्न लिया 10 मीटर, फिर उसने लेफ्ट 5 लिया, और फिर उसने 5 लिया, और फिर उसने 5 लिया, वो यहाँ पे आ गई। तो कुछ इस तरह की डायग्राम बनी मेरी, राइट। कुछ इस तरह की डायग्राम बनी। तो उसने क्या कहा था कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा और ये एंड पॉइंट है। उसने क्या कहा कि स्टार्टिंग से एंड पॉइंट के बीच का कितना डिस्टेंस है, कितना बचा है मेरा, 5 मीटर। क्योंकि ये 10 यहाँ पे खत्म हो गया, बाकी ये 5 का जो डिफरेंस है, क्योंकि टोटल 15 ये था, 10 ये था, उसमें से मैं 10 माइनस कर दूं, ये 5 बचता है, वो यहाँ पे आके सेम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 मीटर का डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट से। नाउ कंप्लीट द सीरीज। 2, 5, 9, 19, 37। 2, 5, 9, 19, 37। इसको ध्यान से देखो। सीरीज का क्या होता है कि एक बार देखना पड़ता है वो किस तरह की बन सकती है। अगर मैं देखूं प्लस माइनस में कि आपका प्लस माइनस वाला थोड़ा चेंज आ रहा है, कि थोड़ा सेम सेम है, एक एक दो दो ज्यादा हो रहा है, वो कोई इशू नहीं होता। तो वो देखोगे आप, पहले 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 3 और 4 के बाद 10 बढ़ गया, और 10 के बाद फिर क्या बढ़ रहा है, 18। तो उसमें कुछ पैटर्न नहीं बन रहा, राइट। बना सकते हो, देखो 3 और 4, तीन तीन के साथ कुछ और होता तो मैं बना लेता। 3 और 4, 10, 18, वो बढ़ रहा है, जो जिस सीक्वेंस में बढ़ रहा है वो थोड़ा तेजी से जा रहा है, तो वो एकदम से ही स्पीड पकड़ा है, तो वो उसमें नहीं हो सकता। आगे हम देखें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप देखो, डबल करके देखो इसका 2 का, तो वो देखो उसके पास 5 का डबल करके देखो उसके आसपास आ रहा है, 9 का डबल करके देखो उसके आसपास आ रहा है, 19 का डबल करके। तो यहाँ कुछ हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है। अगर इसका मैं डबल कर दूं तो +1 करना पड़ेगा, मेरे को 5 आएगा, राइट। इसका मैं डबल कर दूं, फिर इसको -1 करूं तो मेरा 9 आ रहा है। अच्छा, आगे क्या हो रहा है, इसका मैं डबल करूं तो +1 करूं, मेरा 19 आ रहा है, और इसका आगे देखो तो डबल कर रहा हूँ और -1 कर रहा हूँ, मेरा 37 आ रहा है। दैट मीन्स जो आगे का मेरा वैल्यू होगा, जो आगे का मेरा वैल्यू होगा, देखो एक पैटर्न बन रहा है, इंटू 2+1 इंटू 2 -1 इंटू 2+1 इंटू 2 -1। यहाँ पे आगे का जो मेरा पैटर्न होगा, अगेन इंटू 2+1, क्या आएगा, 37 7 विच इज 74 +1 75 जो है यहाँ मेरा, 75 जो है यहाँ पे मेरा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अ ट्रॉली आर पुली, some pulleys are chain, all chains are belts. A trolleys are pulleys, some pulleys are chains, all chains are belts. ठीक है, तो देखते हैं हम। देखिए, all trolleys are pulleys। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, ये हमारा सिलोलिज्म है, सिंपल वेल डायग्राम बनाएंगे और उसके बेसिस पे हमारा हो जाएगा। All the trolleys are pulleys, right? Some pulleys are chain, some pulleys are chain. Okay, all the chains are belts, all the chains are belts। ठीक है, ये हो गया मेरा, राइट। दीज आर ट्रॉलीज, दीज आर पुलीज, दीज आर चेन्स एंड दीज आर बेल्स। तो इसके बेसिस पे जो मेरी नॉर्मल सी वेन डायग्राम बनी वो क्या बनी। ठीक है, आगे कंक्लूजन की बात करते हैं। सम बेल्स आर ट्रॉलीज, सम बेल्स आर ट्रॉलीज। नो, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। मेरे को कुछ नहीं गिवन, कोई मेरे को निकाल भी नहीं सकता कंक्लूजन किसी स्टेटमेंट को मर्ज करके भी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे दैट्स रॉन्ग। No bell is trolley, no bell is trolley, some bell are trolley, no bell are trolley। अगेन मेरे को नहीं पता इनके बारे में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों मैंने काट दिए। पर अगर इन दोनों की बात करूं, आप ध्यान से देखो, दोनों सेम चीजें हैं, दोनों सेम चीजों के ऊपर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑल नहीं है, सम है, और नेगेटिव में नो है, राइट। और उनके बारे में कुछ मेरे को पता नहीं चल रहा स्टेटमेंट से। तो ये जो मेरे केस हो गया, वो मेरा क्या केस हो गया, ए और बी का, ए और बी वाला मेरा केस हो गया इधर होगा, ए और बी वाला मेरा केस हो गया इधर होगा। आगे देखो, सम पुलिस आर बेल, सम पुलिस आर बेल, यस, बिकॉज सम पुलिस आर चेन, और चेन जो है वो बेल्स भी हैं, दैट्स व्हाई सम पुलिस आर बेल। ओके, नेक्स्ट, ऑल चेन्स आर पुलिस। नो, दैट्स नॉट गिवन। ये मेरे को पता नहीं है, चांसेस हो सकता है। अब पॉसिबिलिटी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मेरे को एक्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए क्योंकि मेरा जो वेन डायग्राम है उसके अंदर नहीं आ रहा, सो दैट्स व्हाई दैट इज।
तो क्या आएगा इसका आंसर? इधर 1 and 2, अच्छा यहाँ पे ABCD और यहाँ पे 1 2 हो गया। ओके, इधर 1 or 2 and 3, इधर 1 or 2 and 3 अगर मैं कहूँ ABC के बेसिस पे, इधर A और B एंड C, तो ये जो है वो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन दैट 4373 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 9561, यहाँ पे भी कॉमा डाल देते हैं 565, राइट द नंबर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। तो देखो, क्या आप इनका स्क्वायर निकालने बैठोगे? क्या आप इतनी बड़ी वैल्यू को डिवाइड करके देखोगे क्या स्क्वायर बन सकते हैं? बहुत लेंथी जाएगा, राइट। कैलसी तो नहीं होगा आपकी, कैलकुलेटर तो नहीं होगा आपके पास। तो देखो क्या हो सकता है, एक इजी वे जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चंस में मैं यूज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, अगर आपने नंबर सिस्टम मेरे से पढ़ा हुआ है तो मेरे को ये बताओ जी यूनिट डिजिट क्या हो। यहाँ पे देखो, मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ 9 आएगा, प्लस 1 यूनिट डिजिट 10 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 2 इंटू 5 करता हूँ, 0 आ रहा है, राइट। तो ये तो मेरी सही सही इक्वेशन है, सही सही इक्वेशन है। और इसके बेसिस पे अब मेरे को कह रहा है कि इसको ब्रेक करना है इनमें से किसी में। तो मैं देखता हूँ कि यूनिट डिजिट मेरा 5 कहाँ पे आ रहा है। यहाँ देखूंगा तो यहाँ फर्स्ट के केस में कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर 5, 4 का स्क्वायर 6, तो मेरा 1 आ रहा है। अच्छा, सेकंड केस में देखता हूँ तो मेरा 0 प्लस 9 9 आ रहा है। थर्ड केस में देखता हूँ तो मेरा 8 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 1, यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है। और आगे देखता हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी में, 5 का स्क्वायर 5 और 7 का स्क्वायर 9, तो मेरा 4 आ रहा है। तो मतलब मेरे को यूनिट डिजिट सेम कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो मेरा आंसर जो होगा फिर वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि आगे तो और कुछ नहीं दिया कि नन ऑफ दीज है कुछ ऐसा ऑप्शन, सिर्फ मेरे को ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा, राइट। सो 26 का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। किससे बेसिस पे किया मैंने, यूनिट डिजिट के बेसिस पे। पूरा क्वेश्चन देखने में ऐसा लग रहा था कि मेरे को कैलसी के बिना हो ही नहीं सकता, लेकिन मैंने आपको इस तरह से निकाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 1800 एंड 756। 1800 एंड 756 का जीसीडी निकालना है। जीसीडी इज नथिंग बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज नथिंग बट अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम निकालेंगे उसका, तो क्या होगा, मैंने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन कर दिया 1800 का और 756। 1800 का किया ये बना, 756 का किया ये बना, और उसमें से जो कॉमन निकल रहा था 2 और 36 जो है वो उसमें कॉमन आ रहा है, 36 जो है वो उसमें कॉमन आ रहा है, राइट। तो जो इसका आंसर आया, क्या आया मेरा, ऑप्शन नंबर ए 36। नेक्स्ट देखिए, इन अ क्रिकेट मैच बैट्समैन ए बी सी डी ई स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 36। इन्होंने ए बी सी डी ई सारों ने एवरेज ऑफ 36 किया। अगर मैं इनका सम की बात करूं, इन्होंने टोटल कितना बनाया, तो आप बता सकते हो। अगर मैं एवरेज करूं डिवाइडेड बाय 5, इट विल इक्वल टू 36। तो इनका टोटल जो होगा 36 इंटू 5 होगा, विच इज 180, राइट। ये मेरे को पता है टोटल, ये टोटल पता लग गया। आगे देखते हैं, D scored 5 more than E. D scored 5 more than E. E scored 8 fewer than A. E scored 8 fewer than A. That means A scored 8 more than E. Right? A scored 8 more than E. Then B scored as much as the combined of D and E. B scored as much as the combined of D and E. Okay? now यहाँ पे फिर से ब्रेक हो रहा है, और आगे क्या कह रहा है, D and E प्लस करना पड़ेगा। B and C, B and C scored 107 run. B and C scored 107 run. ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आप ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं अभी। ये गिवन है मेरे को, हाउ मेनी रन डिड ई स्कोर, हाउ मेनी रन डिड ई स्कोर। ई के बारे में मेरे को पता, ई के बारे में पता करना, मैं बी और सी की वैल्यू यहाँ पे पहले तो पुट करता हूँ। बी और सी की वैल्यू पुट करता हूं तो वो मेरी क्या आएगी, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस 107 प्लस डी प्लस, राइट। क्या आएगा इसका आंसर, क्या इसका जो गिवन है मेरे को ये, ठीक है, बी और सी का ये गिवन। आगे देखिए, डी एंड ई,
ये जो डी एंड ई है वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। डी और ई है जो बी के इक्वल है, वो मैं क्या करूंगा, अगर पुट करूंगा तो फिर मेरा सी आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बी को मैंने हटा दिया और सी को भी हटा दिया। अच्छा, यहाँ पे ए की वैल्यू ई की फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 8 प्लस ई, और डी की वैल्यू भी ई की फॉर्म में लिख देता हूँ, मैं लिखता हूँ 5 प्लस ई, और उसके बाद जो बचा मेरा वो भी क्या है, इसके बेसिस पे 3e मेरा कितना आ रहा है, 180 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 157, राइट, 167, सॉरी 167, और उसके बेसिस पे, और यहाँ पे मेरा 107 रह गया था, वो भी मैं माइनस करूंगा इसमें से, वो भी मेरा माइनस होगा, सॉरी 107 ही माइनस होगा, मेरा रह क्या जाएगा 60, मेरा रह क्या जाएगा 60। तो ये जो इक्वेशन बाद में बच रही है, लास्ट में बच रही है जो इक्वेशन, क्या बच रही है, 3e इज इक्वल टू, दैट मींस e की वैल्यू क्या है, e ने कितना स्कोर किया है, 20 रन, e ने कितना स्कोर किया है, 20 रन ओनली। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका वो राइट आंसर होगा। आगे चलिए, तो ऑप्शन नंबर ई जो होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विच इज 20। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वेन डायग्राम बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग द टू ऑफ द सेट ऑफ आइटम। स्टेटमेंट वन की बात करूं, यॉर्क, ज़ेब्रा, बियर, तीनों अलग अलग तरह के एनिमल है, तीनों में आपस में कुछ रिलेशनशिप नहीं बन रहा, राइट। तो ये जो नॉर्मल हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा स्टेटमेंट वन का, ये बनेगी वेन ड्राइव। अब मैं इसकी बात करूं, सन, मून एंड स्टार। अच्छा, सन जो है वो भी एक स्टार है, राइट। सन जो है वो भी एक हमारा, जो हमारा सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो क्या है, सन। सन खुद भी एक स्टार है, लेकिन मून जो है वो एक स्टार भी नहीं है, और वो सन के अंदर भी नहीं है, कुछ ऐसा भी नहीं है, वो एक एस्ट्रॉयड है, नेचुरल, सॉरी, इट्स नॉट ए एस्ट्रॉयड, इट्स अ नेचुरल सैटेलाइट, ओके। एस्ट्रॉयड नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेक आई टोल्ड एस्ट्रॉयड। क्या है, मून जो है वो मेरा नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल तो हम जो भेजते हैं वो तो अलग चीज है, ये हमारा एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, राइट। तो इसका जो आंसर आएगा मेरा क्या आएगा, देखो ये आएगा, ये सन है, इसके अंदर है, स्टार के अंदर है, बिकॉज वो भी एक स्टार है, तो और ये जो है वो मून है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करते हैं मेरे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। क्या इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन एंड टू फॉलोज, ओनली वन एंड टू फॉलोज। देखो याक, ज़ेब्रा, बेयर, और यहाँ पे इस तरह से सेकंड में सन, स्टार एंड मून। ठीक है, आगे चलिए। Among the five group of letters given below, two are different from the remaining three groups of letters. Now, first is level, fretful, rude, lob, caloric. तो देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे मेरे को एक पजल सी दे दी गई है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ लेटर्स की बात करूं, इट इज 5। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर बात करूं, इट इज 7। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर बात करूं, इट इज 5। यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर बात करूं, इट इज 6, और यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर बात करूंगा, इट इज 7। अगर तो कोई एक कहता तो मैं निकाल देता लॉ, क्योंकि वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स है, बाकी ऑड नंबर ऑफ लेटर्स। लेकिन दो कहा है इसने, क्या दो हो सकते हैं, ये तो नहीं बन रहा, इवन ऑड का नहीं बन रहा। चलिए और देखते हैं। अच्छा, अगर मैं कहूं मेरे इसमें नंबर ऑफ वोवल्स और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ वोवल्स है मेरे 2, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है मेरे यहाँ पे 3। इसकी बात करूं, मेरे नंबर ऑफ वोवल्स हैं 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे बात करूं, मेरे नंबर ऑफ वोवल्स हैं 2, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हैं 3। यहाँ पे बात करूं, मेरे नंबर ऑफ वोवल्स हैं 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है 2। यहाँ पे बात करूं, मेरे नंबर ऑफ वोवल्स हैं 1 2 3, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स है 1 2 3 4, 1 2 4। ठीक है, क्या मैं इसके बेसिस पे कुछ कह सकता हूँ, अगर मैं ये कहूं कि मेरे वोवल्स हैं, बाकी इन तीनों में दो दो हैं, लेकिन इनमें दो नहीं है, इनमें उनसे ज्यादा है, अगर इसके बेसिस पे आए तो क्या आएगा, मेरा 4 और 5 आएगा। तो मेरा आंसर भी है एक ऑप्शन 4 और 5। ठीक है, एक मेरा ऑप्शन भी है 4 और 5, तो जो इसका आंसर है वो यही होगा,
ओनली 4 and 5। क्यों? इसमें जो नंबर ऑफ वोबल्स है वो 2 से ज्यादा है, नंबर ऑफ वोबल्स है 2 से ज्यादा है, बाकियों में सिर्फ दो दो वोबल्स थे, इसमें 3 है या 4 है। ओके, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 4 and 5। द नेक्स्ट क्वेश्चन, for any positive integer, let's say more than n, let's say n which is more than 1, the canonical form for that number n, canonical is a standard form, normal जो हम किसी नंबर को किसी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो कौन सी फॉर्म होगी? तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इज n is equal to p1 raised to power k1, p2 raised to power k2 up to so on pr raised to power kr, where pi's are primes and ki's are positive integers। तो ये एक्चुअल में क्या है? ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन कह सकता हूँ मैं इसको। इज इट अ प्राइम फैक्टराइजेशन? राइट, चलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन। आगे मैं कहूँ n इज इक्वल टू पी वन इंटू पी टू इंटू पी आर, नो, ऐसा तो कुछ नहीं। अगर मैं 8 की बात करूं, इट इज 2 रेज टू पावर 3। ये p1 p2 p3 जो है वो सेम चीज है, तो वो उसके ऊपर पावर है, ये नहीं हो सकता मेरा। n इज इक्वल टू 2p प्लस 1, हमेशा प्राइम से एक एक्स्ट्रा होगा। तो अगर मैं 16 की बात करूं, इज इट 15 प्लस 1, तो 15 क्या मेरा प्राइम नंबर है? नॉट एट ऑल, ये भी गलत है। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मैं किसी का नंबर का भी कर सकता हूँ, किसी नंबर का भी कर सकता हूँ, वो इस वे से ही रिप्रेजेंट होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसी नंबर का भी कर सकता हूँ, वो इस वे से ही रिप्रेजेंट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, दैट इज इट्स नथिंग बट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। कैनोनिकल फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म कह देते हैं किसी भी नंबर का, वो हम उसको इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 15789 इज रिटन एज दिस, दिस इज रिटन एज दिस वे, और मेरे को इसका बताना है। डायरेक्ट कोडिंग है, जो भी मेरे नंबर है, देखो अगर यहाँ पे मैं कॉमन की बात करूं, आई हैव अ कॉमन नंबर, नथिंग कॉमन इज देयर। और अगर मैं इसमें लेटर्स की बात करूं, लेटर में भी कुछ कॉमन नहीं है, सो दैट मीन्स ये डायरेक्ट कोडिंग है। डायरेक्ट कोडिंग की बात करता हूं तो 2 का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ मेरा? ई, मेरे को इसका निकालना है। 2 का कोड दिया ई, 3 का कोड दिया है मेरा जी, 5 का कोड मेरा गिवन है, इट इज द, सॉरी गलत ले लिया मैंने। 2 का कोड मेरा यहाँ पे गिवन है ए, और 3 का कोड यहाँ पे गिवन है एल, और जो मेरा जी 3 का 5 का कोड है, 5 का कोड है मेरा जी, और 4 का जो कोड है, 4 का कोड है मेरा यू, और 9 का जो कोड है, 9 का कोड है मेरा टी। तो इसका जो आंसर आएगा मेरा ये। ठीक है, इसको मैं इस वे से इस कोड में लिख सकता हूँ, एल यू जी यू टी, ए एल जी यू टी, सॉरी ए एल जी यू टी, ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरा सही आंसर। आगे चलिए, देखो स्पेसिफिक उसकी कोडिंग है, सीधी सीधी डायरेक्ट कोडिंग है, उसी बेसिस पे उसका आंसर है। नाउ 6 fruit, apple, orange, guava, banana, papaya, kiwi are in 2 rows, 3 fruits in each of the row. Consider the following of information. Papaya is not an any at the end of any row. किसी भी रो के एंड में नहीं है। किसी भी रो की बात करो, तीन तीन फ्रूट है, तीन तीन फ्रूट है, वो कह रहा है किसी भी एंड में नहीं है, तो यहाँ कहीं नहीं है, तो बीच में ही कहीं पे होगा, या तो यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये नहीं बोला कि फर्स्ट रो या सेकंड रो या फिर फ्रंट या बैक, कुछ ऐसा नहीं बोला हुआ, कहीं पे भी रख सकते हैं। बनाना इज टू द सेकंड लेफ्ट टू द कीवी, बनाना इज टू द सेकंड लेफ्ट टू द कीवी। अगर बनाना कीवी के सेकंड लेफ्ट रखूंगा, तो देखो बनाना यहाँ, कीवी यहाँ आ सकता है, और तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरा। या फिर नीचे रख लो, बनाना यहाँ, कीवी यहाँ आ सकता है, राइट, बनाना यहाँ, कीवी यहाँ आ सकता है, एक ही ऑप्शन। देखो फर्स्ट के बेसिस पे पपाया यहाँ आ सकता है, सेकंड के बेसिस पे या तो पहले में ये चीजें होंगी, या तो दूसरे में ये चीजें होंगी। ठीक है, अब आगे देखो, गुआवा प्लेस नेक्स्ट टू पपाया, गुआवा प्लेस्ड नेक्स्ट टू पपाया, तो गुआवा के साथ जो है वो पपाया है, दैट मींस पपाया इनके बीच नहीं होगा, बनाना और कीवी के बीच पपाया नहीं होगा, उसके दूसरी साइड होगा, जहां पे बनाना और कीवी नहीं पड़ा, क्योंकि पपाया के साथ क्या पड़ा है? गुआवा। और गुआवा क्या है? डायगोनली ऑपोजिट टू बनाना, बनाना यहाँ पे है तो गुआवा यहाँ पे आ जाएगा, तो उसके बेसिस पे देखिए, पपाया और गुआवा यहाँ मैंने लिख दिया, और बनाना और कीवी यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए फोर्थ लाइन, ऑरेंज इज बिसाइड कीवी,
ऑरेंज इज बिसाइड कीवी, कीवी के साथ ऑरेंज रख दिया, जो बचा हुआ मेरा एप्पल वो यहाँ पे आ गया, और इसके बेसिस पे जो मेरी इसकी सिटिंग अरेंजमेंट थी, इसकी अरेंजमेंट थी दो रोज में, वो ऐसी आ गई। तो ये रो वन रो टू का कोई इश्यू नहीं है, वो रो वन कौन सी होगी, टू कौन सी होगी, ये उसने कुछ पूछा भी नहीं मेरे से, क्योंकि आगे पीछे का कुछ बताया नहीं था। तो या तो ये मेरी पहली हो सकती है, ये दूसरी, या फिर ये मेरी दूसरी हो सकती है, ये पहली। ठीक है, किसी वे से भी हो सकता है। दो रोज है, दो रोज में इस तरह का होगा, एक रो ऐसी होगी, एक रो ऐसी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्रूट अरेंजमेंट। एप्पल एंड ऑरेंज प्लेस डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। एप्पल एंड ऑरेंज, नो डायगोनली नहीं है, बिकॉज डायगोनली होता तो वो एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहिए था, राइट। तो वो एप्पल और कीवी है, एप्पल और ऑरेंज नहीं है। आगे एप्पल गुआवा पपाया आर प्लेस्ड इन द सेम रो। एप्पल गुआवा पपाया प्लेस्ड इन द सेम रो, एग्जैक्टली सही स्टेटमेंट है ये बी वाली। सी की देख लेते हैं। बनाना इज नॉट ऑपोजिट टू गुआवा, बनाना इज नॉट ऑपोजिट टू, सॉरी, बनाना इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू गुआवा, लेकिन हम देखें बनाना के ऑपोजिट एप्पल है, गुआवा नहीं है, तो ये भी गलत है। डी तो नन ऑफ दीज है, तो ऑप्शन नंबर बी जो मेरा सही आया वही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider that Venn diagram below. The number of Venn diagram indicates the number of person reading newspaper. The diagram is drawn after serving 50 persons in a population of 1000, 10,000. How many can be expected to read at least two newspapers? देखो, टू न्यूज़पेपर की बात करो, टू न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं जो एटलीस्ट टू, कम से कम दो पढ़ने वाले ये, और कम से कम दो में तीन भी आ जाता तो ये भी आएगा। तो अगर 50 में से बात करूं, 50 में से मेरे यहाँ पे 27 लोग जो हैं, 27% जो है वो दो कम से कम पढ़ रहे हैं। 50 में से 27 कम से कम दो पढ़ रहे हैं, इसी बेसिस पे 10,000 में से कितने पढ़ेंगे, वो मेरा क्या आ जाएगा, 10,000 में से 5400 है जो कम से कम दो पढ़ेंगे, उसी बेसिस। देखो उसी रेशो से 50 में से 27 है जो एटलीस्ट टू कर रहे हैं, सेम रेशो 10,000 में से एक्सपेक्टेड करते हैं कि 5400 पढ़ रहे होंगे। बस हमारे जो हमने सर्वे किया उस सर्वे के बेसिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इन द सीरीज हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट नंबर हैव अ डिफरेंस ऑफ टू, हाउ मेनी पेयर ऑफ अल्टरनेट नंबर्स हैव अ डिफरेंस ऑफ टू। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल गलत लगा। क्यों गलत लगा, मैं आपको पेयर बता देता हूँ। ये एक पेयर है, राइट, ये एक पेयर है, ठीक है, ये एक पेयर है, ये एक पेयर है, और उसके बाद अगेन ये एक पेयर है। कितने पेयर हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच हो गए आपके। आई गेस एक पेयर और होगा कोई, ये रहा। हाउ मेनी पेयर ऑफ अल्टरनेट नंबर हैव डिफरेंस ऑफ टू। ये जो 6 पेयर है ना मेरे, 6 पेयर, उनका जो डिफरेंस है वो मेरा 2 आ रहा है, उनका डिफरेंस 2 आ रहा है। तो यहाँ तो ऑप्शन में गिवन ही नहीं है, यहाँ तो ऑप्शन में 6 गिवन ही नहीं है, राइट। तो चलो 6 नहीं गिवन, 6 गिवन नहीं है, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों पेयर सेम टाइप के है तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, 5। अगर ये दोनों सेम टाइप के कहूँ तो मैं इसका आंसर उस बेसिस पे लिख सकता हूँ 5। ये गिवन नहीं है, मैंने देखा कुछ सेम तो नहीं है, तो ये थोड़ा सेम लग रहा था, इसलिए इसके बेसिस पे मैंने इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, 5। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आंसर जो है वो, अगर मैं लगाऊंगा तो मैं उसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए लगाऊंगा। ठीक है, आपके कई क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के देखे जेएनयू के पेपर में, काफी गलत है। एक तो आपके जो वो क्वेश्चंस हैं मिसिंग नंबर वाले, किसी सर्कल में, किसी मैट्रिसेस में, किसी में भी आपके मिसिंग नंबर, मिसिंग कैरेक्टर वाले, मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत गलत है। और आप कहीं और भी जाइए, किसी और इंस्टीट्यूट की आप सोल्यूशन या वीडियो में जाइए, उन्होंने खुद से अपना क्वेश्चन बना दिया हुआ है चेंज करके, और उसके आंसर दे रहे हैं। मैंने सेम टू सेम क्वेश्चन रखा और उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ उसका ये आंसर हो सकता है। आपकी ग्रेस मार्क्सिंग जो है वो लग सकती है जब आपका क्वेश्चन कुछ गलत आता है, तो आपकी ग्रेस मार्क्सिंग लगती है, वो आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि गलत आ रहा है तो सर उसका कुछ आंसर होगा तो हम क्या करें उस नंबर का। वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी होता है, वो उसकी ग्रेस मार्क्सिंग कर देती है। अगर स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि हमारा सर ये क्वेश्चन जो है वो गलत है, जो भी है, हम वो उसको कुछ भी आप आरटीओ डाल के उसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये मेरा
कोडिंग डिकोडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस को इस तरह से लिखा गया है, माइनस को डिवाइड को माइनस में लिखा गया है, मल्टीप्लिकेशन को प्लस में, माइनस को डिवीजन में, प्लस को मल्टीप्लिकेशन। ये आपका, तो उसके बेसिस में मेरे को देखना है कौन सा जो है वो सही है। मैंने चेक किया, ये डिवाइड को था जो प्लस, डिवाइड को प्लस में कन्वर्ट करना था, प्लस को यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। एक बार यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। इस इक्वेशन की बात करो, 52 डिवाइड जो है उसका मतलब क्या है, माइनस, माइनस यहाँ रखूंगा, प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे रखूंगा, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस, प्लस यहाँ पे रखूंगा 8, और माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे रखूंगा। ये मेरा 36 के इक्वल आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा, 52 माइनस 20 विच इज 32, 32 प्लस 4 36, एक्जेक्टली सही आया। इसकी बात करें हम, 36 इंटू को क्या बोल रहा है वो, इंटू का मतलब है प्लस, माइनस का क्या मतलब है हमारा डिवाइड, और प्लस का क्या मतलब है हमारा मल्टीप्लिकेशन इट बाय 5, राइट। और डिवाइड का क्या मतलब है हमारा माइनस, विच इज इक्वल टू, उसने 3 बोला है तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करके देखता हूँ, आई गेट 1/3 इंटू 5 विच इज 5/3। जो मेरा सम करके आएगा भी कुछ वैल्यू, दैट विल बी इन द फ्रैक्शन ऑफ 1/3, राइट। अगर 33 प्लस 5/3 मेरा बन रहा है, क्योंकि 36 से 3 माइनस कर दिया मैंने, तो मेरा कुछ फ्रैक्शंस में आएगा, तो ये आंसर नहीं आएगा, ये मेरा बिल्कुल गलत। तो उसने पूछा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट, तो मेरा ये आ ही रहा है सीधा सीधा गलत, तो तीसरे चौथे को चेक करने की क्या जरूरत है। आप कर सकते हैं फॉर योर ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि आप उसको कहोगे कि सर अभी हम श्योर नहीं है, फॉर योर ऑन श्योरिटी यू कैन चेक थर्ड एंड फोर्थ ऑल्सो, बट अगर आपका एक गलत आ ही गया तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, वही टिक लगाओ तो आगे चले जाओ, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल का यूज करके उसको ये सॉल्व किया हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द रैंकिंग। तो इस रैंकिंग में देखिए, एक रो है, रो ऑफ बॉयज, आर्यन इज 8th, आर्यन यहाँ पे बिठा देते हैं हम 8th पोजीशन पे, ठीक है, फ्रॉम दी राइट, एंड नीलेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, नीलेश इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट, इस साइड से वो 12th पोजीशन। ऊपर जो भी लिखूंगा वो लेफ्ट साइड वाला लिखूंगा, नीचे जो भी लिखूंगा वो राइट वाला साइड वाला लिखूंगा। मैं ऐसे करता हूँ जिससे मेरे को थोड़ी आसानी हो जाती है कि नीचे की पोजीशन किसके बेसिस पे या ऊपर की पोजीशन किसके बेसिस पे, ठीक है। Now, when Aryan and Nilesh interchange their positions, Nilesh become 21st from the left. मतलब ये नीलेश यहाँ पे आ जाता है तो वो 21st हो जाता है फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से 21st है ये वाला एरिया, ये वाली पोजीशन, और राइट से 8 है, मतलब टोटल कितने हो गए, 21 प्लस 8 माइनस 1, राइट। दोनों पोजीशन, दोनों साइड से पोजीशन है, उसमें 1 करना पड़ेगा तभी मेरे नंबर ऑफ बॉयज मिलेंगे, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे 28, नॉट 38, 28 बॉयज आ जाएंगे मेरे। तो 28 बॉयज में से अब कह रहा है कि जब आर्या ने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से नीलेश वाली पोजीशन में गया, तो वो कौन सी पोजीशन होगी, यहाँ से राइट से। तो राइट से देखो, जो सम है मेरा लेफ्ट और राइट वाला, वो टोटल नंबर ऑफ बॉयज से एक ज्यादा होना चाहिए, मतलब 29 होना चाहिए। तो 29 में से अगर मैं 12 निकाल दूं तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पे 17। तो इसका जो आंसर आएगा, इस साइड से इसकी पोजीशन क्या है 17, तो आर्यन की पोजीशन जो चेंज करने के बाद हो जाएगी, क्या हो जाएगी 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द odd one of the following numeric group in is the odd one out, which one of the following numeric group is the odd one out। odd one out मेरे को पता करना है। देख लेते हैं क्या इसमें रिलेशनशिप बन रहा है। अगर मैं 12 की बात करूं और उसके सामने क्या किया है 12 इंटू 12, 15 की बात करूं 15 के सामने क्या हो किया है 15 इंटू 12, 18 की बात करूं 18 के सामने क्या किया है 18 इंटू 11, अच्छा 21 की बात करूं उसके सामने क्या किया है 21 इंटू 12। तो बाकी हर एक केस में एक्सेप्ट 18, बाकी हर एक केस में देखूं तो वो नंबर के साथ 12 का मल्टीप्लिकेशन, वो नंबर के साथ 12 का मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे 11 का है, तो ये जो है वो मेरा ऑड वन है इन चारों में से, ये जो है वो मेरा ऑड वन है इन चारों में से, ठीक है। यहाँ पे 11 का, बाकी सबके साथ 12 का, तो इसलिए ये ऑड वन।
If every alternate letter starting from a B of the given alphabet is written in a small letter and the rest are written in a capital letter, how will the month of September can be written? क्या है इवन पोजीशन वाले बी, डी, एफ, ये जो आगे जितने भी इवन पोजीशन वाले आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट पे, उनका जो लेटर है वो मेरे को कैपिटल लिखना है, सॉरी उनको स्मॉल ही रहने देना है, उनको मैंने स्मॉल ही रहने देना, जो ऑड पोजीशन वाले हैं उनको कैपिटल रखना है। तो ये देखो मैंने सबसे पहले सितंबर के एक एक लेटर की उसकी पोजीशन देखी और पोजीशन के बेसिस पे मैंने देखा ऑड को मैंने कैपिटल रखना, इवन को मैंने स्मॉल रखना, उसके बेसिस पे एस ई ई एम ई ये जो है मेरे कैपिटल आ रहे हैं और बाकी मेरे जो स्मॉल आ रहे हैं, ठीक है, एस ई ई एम ई जो है वो मेरे कैपिटल आ रहे हैं, बाकी स्मॉल आ रहे हैं, और इसके बेसिस पे जो मेरा आंसर बन रहा है क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द रिजल्ट ऑफ एडिंग अ बाइनरी नंबर विल बी, ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, स्टिल अगर आपको करवाना है तो मैं करवा देता हूँ। क्या करते हैं हम इसको ऐड करते हैं, एज यू नो सिंपली जैसे हम ऐड करते हैं उसको ऐड कर लेते हैं। देखो या तो यहाँ पे 0 आ सकता है या 1 आ सकता है, 1 के बाद क्या है, अगर 2 बन गया तो वो आगे जाके एक 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 + 1 2 नहीं लिख सकते, वो एक आगे जाके 1 ऐड हो जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगेन यहाँ पे 1 + 1 2, वो 2 का 1 एक यहाँ चला गया, 3 में से 2 एक 2 के बेसिस पे 1 आगे चला गया और यहाँ पे क्या बच गया 1, तो 1 + 0 + 0 यहाँ पे 1 आ गया, 1 यहाँ पे 1 आ गया, 1 + 1 2, तो 2 नहीं लिख सकते हम, 0 लिखेंगे, उसका आगे का 2 का जो एक है वो 1 आगे चला जाएगा, तो ये मेरा आंसर होगा 10110, 10110, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर है। तो आगे चलिए, वेन डायग्राम के बेसिस पे आपका क्वेश्चन है, स्मॉल ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर, स्मॉल ट्रायंगल रिप्रेजेंट टीचर, मेरे को चाहिए क्या क्या मैं वो देख लेता हूँ। फाइंड हु इज टीचर और ग्रेजुएट बट नॉट पॉलिटिक्स, ये तो हमारे टीचर्स हैं, एंड और ग्रेजुएट, यहाँ तो टीचर यहाँ पे ग्रेजुएट, तो सर्कल रिप्रेजेंटिंग ग्रेजुएट, ये ग्रेजुएट है, और पॉलिटिशियंस जो है वो मेरे बिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन, तो मतलब जो टीचर और ग्रेजुएट जो कि पॉलिटिशियंस नहीं है वो कौन कौन है, या तो ई है या फिर ए, क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड ई, ठीक है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड ई। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 1 to 300 इंक्लूसिव आर डिविजिबल बाय 3 एंड बाय 5 बट नॉट बाय 7, कहने का क्या मतलब है, 3 एंड 5 से डिविजिबल हो, दैट मीन्स 15 से डिविजिबल हो, लेकिन वो 15 वाले जितने भी है उसमें से 7 से डिविजिबल वाली टर्म्स ना, क्या करूंगा, 1 से लेके 300 तक है, 300 तक को डिवाइड करके उसका मैं हाईएस्ट इंटीजर देखूंगा तो मेरा कितना आएगा, अब 20 में से कितने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं वो मेरे को, 20 में से कितने हैं मेरे को जो कि 7 से डिविजिबल हो रहे हैं वो मेरे को पता करना है। तो इसके दो वे होते हैं एक्चुअली, या तो आप उसी 20 को 7 से डिवाइड करके देख लो कितना आ रहा है, इट इज 2, तो वो मैंने 2 माइनस कर देना, मेरा आएगा 18, ठीक है, एक ये वे होता है कि उसमें से कितने किसी अलग फैक्टर के मल्टीपल है, किसी अलग के, उस वो वाला नहीं, 3 5 में से कोई उठा के नहीं हम कर सकते, किसी अलग फैक्टर के, 7 हो गया हमारा, 11 हो गया, उसके कितने फैक्टर है वो मैं निकाल सकता हूँ। या फिर अगर आपको ये सही नहीं लग रहा, एक और वे है, इन तीनों के मल्टीपल क्या होगा, 5 5 3 और 7, इसका जो मल्टीपल होगा 105, मतलब तो 3 और 5 का तो मल्टीपल है और 7 का भी है, वो 105 से डिवाइड होगा, वो देख लेते हैं 300 में से कितने हैं, वो जब मैं देखता हूँ वो भी आंसर क्या आता है, तो चाहे तो आप इस वे से कर लो, सेकंड में इस वे से कर लो, इधर दिस वे और दैट वे, तो उसके बाद क्या करना है हमने, 20 में से वही 2 माइनस करने, मेरा आंसर 18 है, 20 में से वही 2 माइनस करने, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखिए, a bus start from city X, number of women in the bus is half of the number of men, number of women in the bus in the, city X is half of the number of men in the city Y, as 10 men leaves the bus and 5 women enter, the number of men and women in the bus become equal। चलिए देख लेते हैं, सिटी एक्स की बात करता हूँ, सिटी एक्स की बात करता हूँ, यहाँ वुमेन और यहाँ मैन लिखता रहता हूँ, जितने भी नंबर ऑफ मैन, ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, आपके नंबर ऑफ मैन को अगर मैं एक्स ले लूँ तो नंबर ऑफ वुमेन आपकी 2x हो जाएगी सिटी एक्स में। जब सिटी वाई में पहुंचे
सिटी वाई में पहुंचे, वहां क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे एक्स लूंगा क्योंकि वुमेन जितने हैं वो हाफ है एज कम्पेयर टू मैन, मैन डबल। यहाँ पे मैं एक्स लूंगा, यहाँ पे मैं 2x लूंगा। जब सिटी वाई में पहुंचे तो वुमेन में 5 वुमेन और चढ़ गई, लेकिन मैन में जो है वो 10 मैन उतर गए। तो क्या कह रहा है कि जब ये 5 वुमेन और चढ़ गई यहाँ पे और ये यहाँ पे 10 मैन उतर गए, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या है, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरी x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही है, 15। ठीक है, क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी फ्रॉम द सिटी x हाउ मेनी पैसेंजर स्टार्टेड देयर जर्नी। अब x की वैल्यू 15 है, दैट मीन स्टार्टिंग में वुमेन मेरी 15 थी और मैन मेरे कितने थे, 30। टोटल कितने पैसेंजर थे, 15 प्लस 30 विच इज इक्वल टू टोटल 45%। मेरे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो इसका जो आपका 2017 का जेएनयू का पेपर है उसका मैंने आपको एक्सप्लेन ब्रीफली कर दिया है। आप विद सोल्यूशन विद आंसर कीज आप उसको मैच कर सकते हैं। कोई डाउट आया आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसका उसी टाइम सोल्यूशन कर देंगे। ठीक है, उसी टाइम अगर किसी क्वेश्चन में फिर से डाउट है तो उसको समझा सकते हैं, वहां पे आपको उसका रिप्लाई आएगा। ठीक है, so that is all. We will meet you in next lecture with JNU 2018 paper. Okay.